Dear students, we will study today about the understanding quadrilateral of exercise number 3.4. We have done complete exercise of all the chapter but it is remaining. ये हमारी एक्सरसाइज रह जाती है. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. हमें देखना है कि क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं. सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बट रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. इट इज फॉल्स. रीजन दे देंगे हम. Because squares has equal sides, all sides are equal, but rectangles have opposite sides are rectangles. Sides of rectangle are opposite sides of rectangle are equal. Now all rhombuses are parallelogram. क्या सभी rhombus parallelogram होते हैं? Yes, it is true. Because each pair of rhombus, opposite sides of a rhombus are parallel and opposite angles of a rhombus are equal, then it is a parallelogram. We can say all squares are rhombuses and also rectangles. क्या सभी स्क्वायर rhombus होते हैं? सभी स्क्वायर rhombus होते हैं क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड ईच साइड इक्वल होती है नंबर 1. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नंबर 2 एंड रोम्बस के जो डायगोनल हैं और स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस होल्ड इन स्क्वायर्स. Therefore, all rectangles are क्या सभी all squares are rhombus and also rectangle. सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं. सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की हमारी प्रॉपर्टी है. हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दें तो if a rectangle is a special type of parallelogram if one angle is 90 degree. So square is also a rectangle but all rectangles are not square. Rectangles are not square. So then all rectangles are not square but all squares are rectangle and rhombus also. So it is true. Now all squares are not parallelogram. क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? All squares are not parallelogram. It is false. All squares are parallelogram because each pair of opposite sides are parallel and each pair of opposite angles are equal. So it is a parallelogram. Square will also be a parallelogram. All kites are rhombus. Yes, all kites. It is true. No, it is false because all kites are not rhombus because each side of a rhombus are equal but the adjacent sides of a kite has equal. Adjacent sides of a kite are equal but all sides are not equal. But the rhombus have all equal sides. Now all rhombus are kites. Yes, it is true because the adjacent side, all sides of a rhombus are equal and adjacent sides of a rhombus are equal and the adjacent
The angles subtended on base are also equal. These angles are also equal, and these angles are also equal. So the all rhombus are chies. Now we have come on G part, part number G. पार्ट जी में all parallelogram are trapezium. G पार्ट है all parallelogram are trapezium. आंसर, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो. बट यहां पैरेललोग्राम की ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है. देयरफॉर एंड ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. देयरफॉर इट इज ट्रू. नंबर एच है हमारा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. यस, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि यहां पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि यहां पर अपोजिट one pair of opposite sides are parallel, so it is true. Answer will be true. Answer will be true. Now first question has complete. Identify all quadrilaterals that have four sides of equal length. हमें आइडेंटिफाई करना है. सेकंड क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई identify all the quadrilaterals that have all the quadrilaterals that have. हमें इनको आइडेंटिफाई करना है. नंबर ए पार्ट है इसका, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. Four sides are of equal length. फोर साइड्स इक्वल लेंथ की हो. बी पार्ट है हमारा फोर साइड एंगल्स, फोर राइट एंगल्स. यहां पर हम आंसर लिख दें इनके, तो आंसर क्या होंगे? फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की हो. तो यहां पर एक तो हमारा स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर फिगर, चारों इक्वल साइड होती हैं. एक यहां पर रोम्बस हो गया जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं. यहां पर फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स में एक तो हमारा स्क्वायर हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया. ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. हमें एक्सप्लेन करना है. थर्ड क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है. बिकॉज इट हैज फोर साइड्स, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. सेकंड पार्ट है, हमें एक्सप्लेन करना है इसको भी. थर्ड क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारा एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, हाउ ए स्क्वायर इज नंबर वन ए क्वाड्रिलेटरल, कि किस तरह से एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होगा. नंबर वन आंसर विल बी हियर. सेकंड पार्ट इसका, ए पैरेललोग्राम कब होगा, ए पैरेललोग्राम कब होगा. नंबर थर्ड विल बी, थर्ड क्वेश्चन विल बी ए रोम्बस,
आंसर यहां पर हम लिख देंगे। और थर्ड क्वेश्चन है कि ए रोम्बस कब होगा। ए रोम्बस एक स्क्वायर रोम्बस होगा, एक्सप्लेन करना है। और नंबर फोर है हमारा इसका ए रेक्टेंगल। यहां पर इसका आंसर, यहां पर इसका आंसर। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारा क्वाड्री स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा। बिकॉज स्क्वायर हैज, ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा याद भी रहेगा हम आपको। तो यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, चारों साइड इक्वल होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां पर क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा, बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट हैज 4 sides, so it is a square। लिख देंगे हम, therefore it is a square। now a parallelogram कब होगा, each pair of opposite sides are parallel, each pair of opposite sides आर पैरेलल। तो हर साइड पैरेलल होती है। रोम्बस कब होगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि यहां पर ईच साइड्स मस्ट बी इक्वल, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। नंबर 1 तो वो है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल इसके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। स्क्वायर के यहां पर जो ये डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर स्क्वायर के भी करते हैं और रोम्बस के भी करते हैं। देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। यस, बिकॉज ऑल साइड्स are equal। number 2, diagonal bisect each other at 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल कब होगा, एक स्क्वायर रेक्टेंगल का 1 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो इट इज ए रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल and each angle is 90 degree, so it will be a rectangle। now क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 3 हमारा कंप्लीट हो गया। now 4 क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other। हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को। पैरेललोग्राम नंबर 2 हो गया हमारा, रोम्बस हो गया, नंबर 3 स्क्वायर हो गया, नंबर 4 हमारा रेक्टेंगल हो गया। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। हमारी 2 फिगर होंगी, तो हमारा 4th पार्ट है इसका। 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, और 4 है हमारा नेम द क्वाड्रिलेटरल, नेम
The quadrilateral whose diagonals number one part bisect each other. नंबर टू है हमारा इसका आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. नंबर थर्ड आर इक्वल ये है हमारा, हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है, वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहां पर आया जो बाइसेक्ट करते हैं. नंबर वन पैरेललोग्राम, आंसर में पैरेललोग्राम. नंबर टू रेक्टेंगल. नंबर थ्री स्क्वायर. नंबर फोर रोम्बस. इस सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. अब है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो एक दूसरे के. तो ये हमारी दो फिगर हैं, एक तो है रोम्बस और दूसरी है स्क्वायर. इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. अब है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिनके डायगोनल इक्वल हो. तो यहां पर है हमारा एक तो रेक्टेंगल, आंसर ये आंसर थे रेक्टेंगल. नंबर टू स्क्वायर. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा रेक्टेंगल? आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? द डायगोनल, ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इट मींस बोथ डायगोनल्स, इफ both diagonals of a quadrilateral inside the quadrilateral therefore is interior, in the interior of the quadrilateral, then it is a convex quadrilateral. तो सभी जो डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल के इंटीरियर में होते हैं, तो अंदर होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, इसलिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल. तो ये पार्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है रेक्टेंगल इज ए बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर in the interior of the polygon, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. तो नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्वेक्स, हमारा क्वाड्रिलेटरल या कॉन्वेक्स रेक्टेंगल है. नेक्स्ट आ गया हमारा 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इट इज लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है. एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है. यहां पर ये है फिगर ए बी सी, ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे,
और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, तो ये हो गई सी डी। ये कह रहा है कि ए बी सी डी, ओ इज मिड पॉइंट, यहां से हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया डायगोनल को, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द राइट एंगल। ओ मिड पॉइंट है, राइट एंगल की साइड का एसी का मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें ए बी सी से, ओ जो है ए से, बी से और सी से क्यों डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहां पर वो ये कह रहा है हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो है वो इक्विडिस्टेंट क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर हो गया O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC। एंड यहां पर आ गया हमारा कि ये जो फिगर आएगी यहां पर B जो है इट मीन्स OC से भी O एंड O से, तो ये जो हमारा फिगर है क्योंकि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स यहां पर आ गया हमारा O मिड पॉइंट है किसका, AC का, गिवन है। तो ABC से, क्योंकि यहां से हम यदि हम सर्कल ड्रॉ करें, O पॉइंट को सर्कल मान करके ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट O then it passes through all the point ABC। ABC O को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इफ वी ड्रॉ ए सर्कल with center taking center ABC, then it will passes through all the point, so we can say that the O point is equal distance from ABC. Now best of luck all of you, and you can do all the questions of this exercise and chapter is over। तो अब आगे जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे और वो चैप्टर लेंगे हम 6 चैप्टर लेंगे। 6 चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि जो यहाँ पर हम आपको ज्योमेट्रिकल का हम कराएं तो ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए ज्योमेट्री जो स्कूल खुलने पर ही हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे और फिर 8 करेंगे। इसके बाद हम जितना कर सकते हैं उतना मच बेटर, दैट विल बी बेटर फॉर यू।